Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Ina Khan, as you all know, और आज की हमारी स्ट्रीम थोड़ी डिफरेंट होने वाली है because I just invited a live guest with us, and she's very amazing. And I just saw her first on TV, and she belonged to KP Deer, and she will give her introduction by herself. And I feel like कि मैं जितने भी words इस्तेमाल करूँगी उनके introduction में कम ही होंगे, उनकी तारीफ में कम ही होंगे. So I would more like to talk, or I would more like to listen from her. And and I would also like to know कि उनकी जो achievements है, because she's an athlete and उन्होंने साइकिलिंग करके बेस कैंप तक गई हैं वो, और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं. आई एम वेटिंग फॉर हर. लेट्स होप शी जॉइन मी वेरी सून. बिफोर दैट वी वर ट्राइंग कि हम स्ट्रीम यार्ड से आ जाएँ, तो दैट वाज नॉट वर्किंग. सो वी थॉट कि हम इसी तरीके से आ जाएँ. मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम पेज. और so before she came, I would like to give you her a little introduction about Samar Khan. Uh, she's an athlete, and she have a lot of achievement, and she faced a lot of hurdles as well, because she is doing snowboarding as well. She went for Hunza hike. She is doing a lot of endorsement as well. She got a very interactive YouTube channel as well. We are waiting for her. Let's hope she join me very soon. एंड दिस इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, बिकॉज यूजली आप लोगों को मुझे देखा होगा स्ट्रीम करते हुए मैं मोस्टली मेंटल हेल्थ की बात करती तो हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करती. कभी कभार देर सम पॉइंट जिसमें मैं बात करती हूँ. सम टाइम आई एम सेलिब्रेटिंग सम डेज अकॉर्डिंग जिसके बारे में मैं बात कर रही होती हूँ. एंड शी इज़ ब्रेकिंग द टैबू एज वेल. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि वो उनको जितने भी हर्डल फेस करने पड़ रहे हैं, उन्होंने उन हर्डल्स का मुकाबला किस तरह से किया. एंड what things what she faced in her life जो उनको आगे लेके जा रहे हैं. एंड what is making her उनके जितने भी goals हैं, क्या चीज़ उनको आगे लेके जा रही है. एंड शी इज़ like how she is going that road, and how what are the things that are helping her to go on that road. And she is making a lot of interesting videos as well, और वो अपने पेज पे सुलगाती रहती हैं, like about snowboarding, about cycling. And there's an interesting thing as well, that she's sometimes wearing the traditional dresses as well, like she's representing her culture in very positive way, breaking the barriers and doing very difficult thing. And athletes और sports वो चीज़ें करी जो हमारे बहुत सारे मेल पॉपुलेशन भी नहीं करती. So she join us very soon. And let me see who else is joining us. And I would like to say, Dr. Shagufta, are you here with me? It is very difficult to be a sport person. Even it's very difficult to be a female in this society if you're working. And she is doing a very good job. Okay, she's here, and I'm already happy to see her, because the way she is so full of life. And I hope she joined me, and I'm already very excited. Assalamu alaikum, Samar. Can you hear me? जी अस्सलाम वालेकुम. Can you hear me, Samar? जी जी
आपका आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आ रही है. Thank you so much. And I just really love your smile. That is so full of life and strong smile. Even your smile is enough to tell other people that you don't care for anything at all. And I would like to know, Thank you so okay, much. Thank you so much. because this is our first interaction and अचीव कर रही है और डिफिकल्ट काम कर रही है, बट बहुत लंबा रास्ता आपने गुजारा है, बहुत लंबा रास्ता कटा है. आई डोंट नो यू फ्रॉम स्टार्ट. आई जस्ट रिसेंटली केम टू नो अबाउट यू, बट आई नो द हर्डल्स एंड आई हैव सीन योर फेस. इट्स ये आपकी स्किन कितनी खराब होती है व्हेन यू आर साइक्लिंग ऑन द ऑन K2 कैंप. आई हैव सीन योर वीडियोस एंड आप इवन ट्रेडिशनल कपड़े पहन के भी साइक्लिंग कर रही होती हैं. एंड हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू. आई मीन आई नो इट्स नॉट अ इजी रोड, बट इवन देन आई वुड लाइक टू नो कि आप खुद बताएं लोगों को इसके बारे में. I have no adventure sports background or anyone in family जो जिसका ताल्लुक adventure sports. Hello? जी बोलिए. I apologize for my internet connection. ये बार-बार drop इट्स हो रहा है. ओके, इट्स ओके. So I बिकॉज वी had to आर start everything from the scratch, from learning, from practice. इट्स ओके, वी नो. बिकॉज 2-3 दिन से तो इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है. इवन यू कैन नॉट डिस्क्राइब द इशू फ्रॉम द इंटरनेट. बिकॉज आपकी मेरी आज सुबह 1-2 स्ट्रीम और कैंसिल हुई जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द इंटरनेट. सो इट्स ओके सबर. नहीं समझ. आपने बीच में कुछ बोला बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आपकी आवाज सुनाई नहीं दी. सो यू नीड टू रिपीट एवरीथिंग अगेन. सॉरी फॉर दिस. मैं ये कह रही थी कि व्हेन आई स्टार्टेड सो मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था स्पोर्ट्स का. मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करता है. तो जब मैं ये करने जा रही थी, इट वाज अ वेरी ह्यूज डिसीजन फॉर मी. और मुझे सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना था. बिल्डिंग माय प्रोफाइल, लर्निंग अबाउट द थिंग्स, गियर, किट, इक्विपमेंट, मुझे क्या क्या चाहिए, ट्रेन कैसे करनी है, कंटिन्यू कैसे करना है, सस्टेन कैसे करना है. एंड माई फैमिली हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग माई फ्यूचर, जिसका मेरे पास खुद भी कोई आंसर नहीं था. So it was also challenging for me to take my own family on board on this decision कि मैं sustain कैसे करूँगी, क्योंकि we don't see athletes commonly earning out of sports or that too adventure sports. वेरी. मेरे पास कोई आंसर नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था मैंने कैसे करना है. just trusted on my vision कि जो भी होगा I'll manage something. Okay. So that was difficult. Both things were difficult कि आपने खुद because when you were young to do a lot of things and because adventure sport is very difficult. आप कहने से पहले मैंने लोगों को ये बताया था हमारे यहाँ तो लड़के ये सब नहीं कर रहे होते. दे उनसे जो कहते हैं सिंपल वॉक इवन जॉगिंग नहीं होती उनसे. The way you are doing that, there's a very difficult thing because I saw your pictures. और आप इतनी एक्सट्रीम जिसको कहते हैं एक्सरसाइज बहुत एक्सट्रीम कर रही होती है. And maybe that is the need of your स्पोर्ट्स की नेचर. आप किस तरह की आपको करना पड़ता है, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड इवन मैंने ये भी बताया स्टार्ट में आपको, हमारी शायद थोड़ा सा वो कैंसिल हो गई थी, आप मतलब आप तक नहीं पहुंची थी. आई हैव सीन योर फेस, वो इतना खराब हो चुका होता है. स्किन के इश्यूज होते हैं. आई हैव सीन ब्रूसेस ऑन योर हैंड्स. इवन आई हैव सीन आपके पाँव के ऊपर चोट लगी हुई थी एंड यू वर जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड. सो फिजिकल इतना तकलीफ उठाना, इमोशनल भी होती है. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट और भी होती है. आई नो दैट इमोशनल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं आपको. पीपल आर टीजिंग यू, पीपल आर गिविंग यू अजीब काइंड ऑफ लुक, हाउ यू आर डूइंग दिस. सो ये सब चीजें फेस करना कितना डिफिकल्ट है आपके लिए, ये आपने कैसे इसको फेस किया? दो चीजें हैं इसमें. एक तो हमारा बिल्कुल भी स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है. आम जो रेगुलर स्पोर्ट्स है वो कल्चर भी पाकिस्तान में नहीं है. ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एक्सेप्ट द बिग सिटीज कराची और लाहौर, इस्लामाबाद में जो लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं वो कर रहे हैं. एलीट क्लास भी है वो. लेकिन नॉर्मली हमारे पास पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है. और एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ वो यूरोपियन स्पोर्ट्स है.
माउंटेन बाइकिंग भी और स्नो बोर्डिंग भी बहुत नए हैं पाकिस्तान में, इसके कोई लोकल ब्रांड्स नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचिंग नहीं है, हम सब कुछ यूट्यूब से सीखते हैं। तो मसला ये है कि जब हम खुद सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने स्पॉन्सर्स के पीछे भी खुद भाग रहे हैं, हम अपने ट्रेनिंग भी खुद कर रहे हैं, कोचिंग भी खुद कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख के सीख रहे हैं, एंड व्हेन वी अचीव समथिंग ना, और उसको इतने आराम से घर बैठे वो लोग जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स किए ही नहीं है वो 2 मिनट में रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, शी इज लाइंग, शी इज अटेंशन सीकर, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि एक तो हमारे लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है एथलीट्स के लिए, और इतनी एफर्ट्स के बाद भी हम लाइफ डेथ सिचुएशंस देखते हैं, वी गो टू रिस्क सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी और अपनी कंट्री की कोई आइडेंटिटी उस स्पोर्ट में बनाए जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो उस एफर्ट को एटलीस्ट अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। आप थोड़ा, आई वुड इंकरेज पीपल टू रिसर्च ऑन स्पोर्ट्स। किसी भी फील्ड में अपनी ओपिनियन देने से पहले उसके बारे में जरूर जानिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, कितनी एफर्ट लगती है, और फिर अपना ओपिनियन दें। वेरी ट्रू, बिल्कुल। और एंड यू आर वेरी मच राइट कि बिल्कुल आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा मसला आपको ये आता है कि चलें, आपको एक बैटल नहीं लड़नी, आप इतनी सारी बैटल्स एक साथ लड़ रही हैं। आप सोसाइटी से लड़ रही हैं, कल्चर से लड़ रही हैं, जिस इलाके से बिलोंग कर रही है उससे बैटल आपकी हो रही है, फिर आपकी मीडिया से बैटल हो रही है, फिर मेल टैबू जो है, हर चीज से बैटल ही बैटल चल रही होती है। इसमें आई एम अ थेरेपिस्ट, सो आई वुड लाइक टू नो पीपल के जो स्ट्रगल आप कर रही हैं। आई नो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एज वेल, इवन आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस स्ट्रगल एज वेल कि आप किस तरह से कर रही हैं। इवन आई एम थेरेपिस्ट, मैं काफी टाइम से काम भी कर रही हूँ, आई नो लॉट ऑफ पीपल, बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से मैंने बात की है, मैं थेरेपी भी कर रही होती हूँ। सो इट्स नॉट इजी टू टेल, बिकॉज आप मुझे एक सेंटेंस बता देंगी, सो आपका एक सेंटेंस आपके 1 साल की थकन भी नहीं उतार सकता। दैट इज द पॉइंट। आपके 4-5 सालों की थकन बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। लेकिन शायद जो देख रहे हैं हम लोगों को, शायद कुछ रिस्पेक्ट आ जाए, कुछ फीमेल की तरफ रिस्पेक्ट आ जाए उनकी, और जब आप कुछ नहीं करें, इस तरह हमें रिस्पेक्ट से निगाह से देखना शुरू कर दें। दिस इज ऑल आई वांट। और मेरे कहने का मकसद यही था इसको, कि मैं चाहती हूँ कि एवरीबडी शुड नो कि इफ समर खान इज डूइंग समथिंग दैट अदर पीपल कैन डू एज वेल। सो जो इमोशनल आपकी स्ट्रगल है, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट एज वेल, हाउ यू आर फेसिंग दिस एंड हाउ यू आर कोपिंग विद दैट एज वेल। आई मीन यू कैन जस्ट से टेल मी जर्नल मुझे इतना बता दें कि ताकि आने वाले बंदे जो हैं उनका जो है पर्सपेक्टिव चेंज हो सके, द पीपल हु वॉच यू। इसमें भी दो चीजें होती हैं कि जब सोसाइटल प्रेशर बढ़ता है, घर वाले बातें सुनाते हैं, फैमिली रिलेटिव्स बातें सुनाते हैं शुरू शुरू में, तो उस टाइम या तो लोग डर के वजह से क्विट कर देते हैं प्रेशर में आके, या तो फिर दूसरी तरफ फेज ये होती है कि वो बहुत ज्यादा जो अपने गोल्स के पीछे क्रेजी होते हैं वो ढीठ हो जाते हैं। सो आई लाई इन द सेकंड कंडीशन। मैंने अपने आप को बहुत ढीठ किया है, मेरी कंडीशनिंग खुद सोसाइटी ने की है। शुरू शुरू में मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, सोशल मीडिया से ऑफ हो जाती थी नेगेटिविटी देख के, या कि जब रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे तो और मोटिवेशन नहीं होती, सेल्फ मोटिवेशन के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपने खुद ही अपने आप को मोटिवेट। तो विथ टाइम आई रियलाइज कि आई कैन नॉट क्विट बिकॉज ऑफ माई सराउंडिंग्स, और मुझे बहुत सारी ऐसी लड़कियों ने अप्रोच किया हु, क्योंकि इनिशियली इट वाज अ वेरी पर्सनल जर्नी, मेरा कोई इरादा नहीं था मुझे किसी को इंस्पायर या मोटिवेट या अपलिफ्ट करने का, मैं क्योंकि आई वाज फाइटिंग विद माय ओन लाइफ। लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी जब मुझे अचीवमेंट्स मिलने लगी एंड आई स्टार्टेड राइजिंग, पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी, तो अ लॉट ऑफ वुमेन अप्रोच्ड मी, एंड बिकॉज ऑफ माई जर्नी, माई स्ट्रगल, जो भी मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती थी, हरासमेंट केस हो रहा है मेरे साथ या कुछ भी मैं फाइट कर रही हूँ, they were taking them and they were leading their lives and they were taking strength than my personal journey, and I should continue it, क्योंकि there are a lot of women, अगर मैं डर के बैठ जाऊंगी तो मैं बाकियों का रास्ता भी नहीं बना सकती। मतलब अगर मुझे आगे बढ़ना है तो, और मैं ये चैलेंजेस खत्म करूंगी, तो वो बाकी मेरे पीछे आने वाली लड़कियों का रास्ता बहुत आसान हो। बिल्कुल आपने सही कहा। एंड हम जब
सो आपने बहुत डिटेल में बताया, और द पॉइंट वाज दैट कि जैसे आपने बताया कि जब आप अचीवमेंट्स आपकी नहीं हो रही थी, असल स्ट्रगल वो होती है, लेकिन स्ट्रगल उसके बाद भी होती है। इट्स नॉट जस्ट आप एक पॉइंट पे चले जाएं, आपने एक चीज अचीव कर ली, स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ चल रही होती है। एंड यू विल एग्री विद दिस एज वेल कि एक दफा आपने एक चीज अपने कंधे पे उठा ली है, एंड बिकॉज द जर्नी इज लाइक, आप कह रही हैं कि आपके पीछे बाकी लोग भी खड़े हैं, आप अचीवमेंट जब नहीं कर लिखते, एक दफा अचीवमेंट चार्ट हुई, रिकॉग्निशन स्टार्ट हुई, तो बाकी कितनी हर्डल्स आपने उसके बाद भी फेस की होंगी। चले घर वाले तो मान गए, लेकिन इवन आई वाज जस्ट लिसनिंग टू सम गर्ल एंड शी वाज सेइंग कि लोग मेरी पिक्चर्स मेरे घर वालों को भेज देते। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज ओवर देयर एज वेल। हाउ यू ओवरकम दिस बैरियर, बिकॉज अब बेशक बहुत कुछ भी आपके पास हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपको कुछ गैजेट्स चाहिए होते हैं जो कि आपने लेने होते हैं, फिर वहां पे जाना, चीजें अरेंज करना, दैट इज नॉट इजी थिंग। हाउ यू मैनेज दीज थिंग्स? I study a lot of things because मेरी जितनी भी empowerment आई है उसके पीछे सिर्फ मेरी knowledge या research शुड आई या रिपीट माय learning क्वेश्चन है सो मच? नहीं नहीं, मुझे मुझे समझ में आ गया है। आपको आवाज आ रही है? मैं अपना क्वेश्चन दोबारा, शुड आई जी जी। रिपीट माय क्वेश्चन? मुझे लगता है कि दोबारा हो गया। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे होते हैं उसको आपने कैसे ओवरकम किया। अब लोगों को क्या बताएंगे, कैसे सबको ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज एक खास तरह की ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है, खास तरह गैजेट्स चाहिए होते हैं, सेफ क्लोथ्स आपको चाहिए होते हैं वहां तक जाने के। स्पेशली अब स्पेशली मेंशन द K2 बेस कैंप की मैं बात कर रही हूँ कि आप अकेले कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं, देयर शुड बी समवन विद यू। सो बिकॉज हमें तो एक लड़की नजर आ रही है जिसने बाइक में खड़ी है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है और हाथ ऊपर किया है कि यस आई कैन डू इट, बट यस आई कैन डू इट के पीछे बहुत स्ट्रगल है। मैं बार बार स्ट्रगल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करी ताकि लोगों को पता चले आसान काम नहीं है। आप एकदम से किसी के बारे में जजमेंट मत पास किया करें, ये बहुत इमोशनल हर्ट कर रहा होता है अगले बंदे को, और आपके पास इवन राइट है भी नहीं किसी के बारे में पास करने के बारे में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने इसको कैसे ओवरकम किया। I'll say that social media is a two-way sword. एक तो मैंने सबसे बड़ा अपनी जो strength बनाया वो social media tool को बनाया, and with time I realized कि हमसे पहले जितने भी पुराने एथलीट्स हैं जिनको कोई नहीं जानता या जो गायब हो गए हैं, who ended up being rickshaw drivers और waiters, उनकी मेन वजह ये भी थी कि उनके पास सोशल मीडिया टूल्स नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी जहां वो अपना काम शेयर कर सके और लोग उन्हें जाने। हमारे पास है, आज के दौर में है, और हमें अपना जितना भी काम होता है मैं उसको लाजमी शेयर करती हूँ, बेशक मेरे चैलेंजेस होते हैं, मेरी अचीवमेंट होती है, वट एवर माई एक्सपीरियंस आई ट्राई टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया। And those who understand sports and those who understand and trust on my abilities, जिन्होंने मेरा काम देखा हुआ है रियल ग्राउंड में, वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको पुश कर सकते हैं, क्योंकि तब अगला बंदा आप पे इन्वेस्ट करता है। और अभी अगर मुझे थोड़े बहुत स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हुए हैं, पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑन बोर्ड एज एज potential sponsors, it's they can see the foundation of सोशल मीडिया से। अगर मुझे एक ये फायदा हुआ है तो सोशल मीडिया से एक दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि इट रियली गोज अगेंस्ट यू। मेरा K2 वाला एक्सपेडिशन जब मैंने किया, मैंने उस पर बहुत मेहनत की, फिजिकली, मेंटली, रिसर्च वाइज, फाइनेंसेस वाइज, media projection, like I was the only one dealing and managing each and everything. And once it got, और वो 18-20 दिन की जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा, लॉट ऑफ लाइफ एंड डेथ ऐसे डेंजरस वाटर क्रॉसिंग होती थी कि उसमें हमसे पहले कितने जानवर बह गए थे, कितने लोग बह गए थे, और हम बड़ी मुश्किल से उससे बचे। सो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लाइक -20, 25, उसमें आप सर्वाइव हैं।
एंड वही बात जब मैंने अचीवमेंट की पोस्ट लगाई, सो नोबडी वाज इवन एक्सेप्टिंग एंड कंसिडरिंग इट, तो उसको एक नेशनल डिस्प्यूट बना दिया गया मेरे खिलाफ, ट्विटर ट्रेंड्स चले। हम्म। एक पॉइंट सारा इसमें यही है कि पीपल थिंक देयर गर्ल कैन नॉट अचीव दिस थिंग, एंड थोड़ा सा हम लोग को टेक्निकल इशू हो रहा है बिकॉज शायद शी इज इन अ प्लेस, and she's very much right about the problem she has faced because स्नो के ऊपर वैसे ही बहुत मुश्किल काम होता है, आप इतनी हैवी उसके साथ जा रहे हैं, एंड आई रियली यू नो रिस्पेक्ट इज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, शायद आप मेरी पोस्ट में थोड़े वर्ड्स देख भी लिए हों कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और वो नेचुरली आ रही है। इट्स नॉट दैट बिकॉज आई एम वर्किंग पर्सन एज वेल, आई नो छोटे उसमें वो कर रहे होते हैं, उसमें हमें हर्डल फेस हो रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह के आपने फेस किए हैं वो मेरे खास उसके बारे में बिल्कुल बहुत कम हर्डल होंगे उसके बारे में अगर देखा जाए तो, बिकॉज आपने इतनी मुश्किल फिजिकल एक्टिविटी इज अ वेरी टफ थिंग, आई नो दैट। उधर जाके हम नॉर्मल मरी हम लोग चले जाए तो हमारे पाँव बिल्कुल फ्रीज हो रहे होते हैं, हम मूव नहीं कर सकते, और आप जाती हैं, आप इतनी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करती हैं, जब वहां पे आपने अपनी पिक्चर लगाई। सो मैंने ये क्वेश्चन आपसे तभी किया, मेंशन तभी किया था कि आपके बारे में मतलब अगर आपकी कोई अचीवमेंट होती है तो उसको सपोर्ट तो कोई नहीं करता, उल्टा कोई डिस्प्यूट निकाल लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने साथ हेलीकॉप्टर लेके तो नहीं गई थी ना, यू डिड नॉट टेक हेलीकॉप्टर विद योर सेल्फ, कि आपको वहां पे खड़ा करके जैसे मूवीज में हो रहा होता है, मूवीज हैं, उसको देखने के लिए लोग हजारों रुपए लगा के जाते हैं, और वो मूवीज करोड़ों रुपए कमा रही होती हैं, एंड यू विल एग्री विद दैट, कितने ज्यादा मूवीज कमाती हैं, और वो सारे स्टंट्स होते हैं, दे आर नॉट रियलिटी। लेकिन रियल लाइफ में किसी ने जाके यही किया तो वो इतनी उसके बारे में कोई वो बना देना, सो कहते हैं कि कंट्रोवर्सी बना देना, इट्स हर्टिंग एज वेल। सो जो हर्ट होता है उसको आप कैसे इनकाउंटर करती हैं? So do you have friends जिसके साथ आप बात करती हैं? There's some other way that you are doing, you are making, you are motivating yourself, because there's always motivation there. You need motivation always for anything you are doing. So ये barrier आप कैसे cross करती हैं या कैसे इससे निकलती हैं? Yes, you have some other way because uh, मेरे आज तक जितने भी चैलेंजेस आए हैं, मुझे नेचर ने बहुत हेल्प और सपोर्ट किया है। बेशक वो स्टार्ट में था जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, या बेशक वो अभी जो चैलेंजेस आते हैं, तो आई डायरेक्टली गो टू नेचर, आई गो फॉर नेचर वॉक्स, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ आउटडोर्स में और अकेले, ताकि मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ कि मैंने क्या ऐसी मिस्टेक की है, या इस चीज़ से निकलने का सोल्यूशन क्या है, मैं आगे अपनी लाइफ में क्या चीज़ इससे बेहतर कर सकती हूँ। So nature really helps me. It calms me down mentally, or I can stay sane by staying in outdoors and around mountains. Um, so I spent my time like that. And then the second thing is, with time, I really made some quality friends. मेरा circle काफी refine हुआ है इन पिछले 5-6 सालों में, और वो लोग खुद मुझे अप्रोच करते हैं जब ये सब अक्सर ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज चलती हैं मेरे एक्सपेडिशंस के बाद, या नेगेटिविटी जब ज़्यादा हो जाती है, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे खुद अप्रोच करते हैं, एंड दे ऑफर मी हेल्प, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, हम काउंटर कैंपेन कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, वी डू दैट। सो आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव पीपल लाइक यू अराउंड मी, who respects my efforts, who trust on my abilities, और बहुत सारे mm-hmm, my sports has become very disruptive. mm-hmm, डिसरप्टिव एज द मीन, क्योंकि मैंने काफ़ी मिथ्स बस्ट किए हैं कि ग्लेशियर पे साइकिलिंग नहीं हो सकती। मैंने 2 दफ़ा ट्राई की, बिल्कुल, सक्सेसफुल हुआ। रूफ ऑफ अफ्रीका पे मैंने साइकिलिंग की, स्नोबोर्डिंग लॉन्च की, और mm-hmm, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो नहीं थी पहले पाकिस्तान में, आई इनिशिएटेड दैट। दो के फर्स्ट एंड करना कोई भी काम बहुत ज़्यादा
स्केरी होता है, बट आई पुश्ड माय लिमिट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि साफ नीयत के साथ जब भी मैंने मेहनत की मुझे उसका अजर ज़रूर मिला है। एंड आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि बेशक लोग चाहे या ना चाहे, जब तक मैं साफ नीयत के साथ मेहनत करी हूँ मैं इंशाल्लाह काम करती रहूंगी एंड आई विल गेट माय फेयर शेयर ऑफ सक्सेस। कोशिश की है, मे बी नॉट बाय द नेम, दैट इज अ कंट्रोवर्सी। ये ना उसके बाद कंट्रोवर्सी चल जाए इतना बस आई जस्ट वांट टू नो कि इफ यू वांट टू शेयर सम यू कुड से हर्डल्स इन द सेंस के कंट्रोवर्सी आपके चले 2-3 तो हमारे सामने आती है, लेकिन हर कंट्रोवर्सी हमारे सामने नहीं आती। वी नो दैट कि हर कंट्रोवर्सी तो हमारे सामने नहीं आएगी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपने अकेले फेस की हैं, मे बी एट द नाइट अकेले बैठी हैं और कोई चीज आपके सामने आ गई है एंड दैट इज स्केरी थिंग। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट किसी फंक्शन में है आप और कोई आपके सामने कोई पोस्ट इस किस्म की चीज आ गई जो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। सो वुड यू लाइक टू मेंशन सम कंट्रोवर्सीज लाइक दैट सो पीपल वुड नो के चैलेंजेस क्या होते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल अदर पीपल दैट हाउ यू कुड से you don't listen to them. My point is over here. That would be shut up call. जरूर मेंशन कर दूंगी कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स में से कुछ लोग ऐसे हैं, गिने चुने 3 से 4 नाम ऐसे हैं Exactly, sir. I'm back. Yes, Samar. Yes, you are back. And nobody will So stop you to say anything. Don't worry about me. कुछ I even also don't care about these people. thank you so much Anila. So I continuously जो मेरी प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे बैकग्राउंड पे मेरी उनकी डायरेक्ट कॉल चली जाती है हर उस प्लेटफॉर्म पे जहां मुझे अचीवमेंट या प्रोजेक्शन या मीडिया कवरेज मिल रही, कॉल देन कि आप इसको क्यों प्रमोट, आप इसको प्रमोट ना करें, ना चलाएं। सो वो ये भी ऑफलाइन वर्ल्ड में ये चीज भी चल रही होती है। और एक और चीज ये हो रहा है कि ऑफलाइन वर्ल्ड तक तो हेट, हरासमेंट, ट्रोलिंग, बुलिंग तक के साथ पब्लिक फिगर जी डॉक्टर गुप्ता, आई नो इशू ब्रॉडकास्ट में आ रहा है, बट वी विल इवन देन कंटिन्यू आवर डिस्कशन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे हो रही है एंड आई होप बहुत जल्दी से हमें ज्वाइन करें। आई डोंट नो उनके साइड से इशू आ रहा है, मुझे मेरी साइड से इशू आ रहा है, बट वी बोथ आर वेरी मच डिटरमिन्ड टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। और आपने कुछ क्वेश्चन पूछने डॉक्टर गुप्ता तो मुझे बताया, मैं भी उनसे पूछूंगी। I'm sure you like her because I just love the way she's working. I love the way she's doing her work and she's doing very difficult job. I must say बहुत मुश्किल का sports है. She's an adventure sports and I'm waiting for someone to join me again.
And you will also notice, Dr. Shagufta, today, yes, here. Yes, Samar, आपको मैं दे रही हूँ. I'm just, जी Samar, thank you so much for joining me. And you know this internet is not holding me back. अगर होता मैं आपको दोबारा लूँगी. Don't. You from saying your word. Okay, so we were talking about problems. अभी आपने थोड़ा सा कुछ mention किया, कुछ हमारे signals अभी and then हमें कुछ समझ आ गया. तो please उसको continue करें, फिर मैं आपसे बहुत important questions मैं करूँगी. Because you were saying जब ये आपकी personal life पे attack करती है. उसके बाद yes. तो उसके बाद काफी लोगों ने उसको मैनिपुलेटिव वे में शेयर किया, प्रॉपर हेट कैंपेन चली, प्लान्ड कैंपेन, और उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि वो मेरे करियर को डैमेज करना चाह रहे थे, बट इट रियली वेंट बियॉन्ड माय करियर, इट वेंट टू माय पर्सनल लाइफ एंड माय पर्सनल सिक्योरिटी. और मैंने काम तो करना है, मेरा सारा काम स्पोर्ट्स माउंटेन्स में है, मैं रोक तो नहीं सकती अपने काम को. तो अभी मैं रिसेंट अपने एक्सपेडिशन में गई भी थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर ट्राइंग टू स्पॉट माय करंट लोकेशन, क्योंकि वो इतना एग्रेशन में आ गई थी, इतना मतलब दे वांटेड टू हार्म मी एंड आई गॉट न्यूज फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि डोंट शेयर एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया. तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं वापस आ जाती हूँ तब मुझे लेट स्टोरीज लेट पोस्ट करने होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिक्योरिटी. मेरे साथ रिसेंट एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए वेर आई it was a close call and I had to save myself just because कि मेरे अगेंस्ट हेट इतना डेवलप कर दिया था एक रीजन में, और वो ये रियलाइज नहीं करते अगर कल को मेरी लाइफ को कुछ हो जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, और अपने Nobody फेक will take the अजम्पशंस को वो इतना responsibility. बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. या सो And उनको because ये you are रियलाइज not नहीं होता कि harming उनकी मामूली सी somebody. हेट कैंपेन, I will या not call it मतलब मामूली. लेट Samar, it is पोस्ट not करने से अगर आपको मामूली. बहुत आप किसी की प्रॉब्लम है तो जिंदगी को आप danger में कर रहे हो. You have no right to, आप what you are doing, you are just cycling. आप एक छोटा सा काम कर रही हैं, छोटा सा काम नहीं, लेकिन you're just cycling. And what you are doing, you are presenting yourself and your whole country in front of whole nation, in front of whole world. वो भी positive way में. You are not saying any bad thing about anyone. किसी को आपने टारगेट नहीं किया, जितना मैं आपको जानती हूँ. You're not a negative person. You're not a person जो लोगों को टारगेट करके ऐसा करेगा. But even then आपको लाइफ का अगर डेंजर का इशू आ गया तो, and it's a good thing that you're not stopping yourself. बिल्कुल सेफ है, दैट्स अ गुड वे कि आप बार बार, बिकॉज ये आपको हर तरह से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ मत लगाएं. और तुम्हें, एंड आई वुड से कि बहुत अच्छा आप अपने काम पे फोकस करें, बाद में आके उनको बताएं कि आपने ये किया. एंड दैट वुड बी गुड शट अप कॉल टू दीस पीपल दैट यू कैन डू एवरीथिंग. एक एक चीज की लगाएं, एक बिकॉज आई एम बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग, सिंपल बात मैं बताती हूँ. आई एम नॉट डूइंग टू मच. छोटी सी मैं शायद को लाइव कर देती हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू पोस्ट एनीथिंग ऑन माई पेज. मैं किसी कमेंट का रिस्पॉन्स नहीं कर सकती. एंड आई डोंट नो मेरी एक छोटी सी लाइफ से किसी को क्या प्रॉब्लम होती है. सो अब तक यू आर डूइंग अ वेरी बिग थिंग एंड इतने लोगों की नजरों में है. अब आई डोंट नो ये किसी की मैस्कुलिनिटी पे आपने अटैक किया. आई डोंट थिंक सो यू आर अटैकिंग समबडी मैस्कुलिनिटी. आई डोंट थिंक सो एट ऑल. किसी टैबू को अटैक किया? यू आर जस्ट डूइंग योर ओन वर्क, यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर ओन स्पेस विद अस. ओके, डॉक्टर शगुफ्ता ने सेड कि आप कोई इंसिडेंट शेयर करें. शी इज माय कलीग. इन्होंने अभी आपने एक इंसिडेंट शेयर किया. एनी अदर इंसिडेंट यू वांट टू मेंशन एज वेल? प्लीज वी वुड लाइक अदर पीपल टू नो कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज दे शुड नो एंड वो इस चीज के लिए मेंटली तैयार भी रहें. फिर मैं एक लोकेशन पे गई थी क्योंकि मैंने सारा विंटर्स अभी नॉर्थ में स्पेंड किया बिकॉज ऑफ माई विंटर स्पोर्ट्स. तो मैं अपने जहाँ मैं रह रही थी वहां से मुझे जाना था अपनी प्रैक्टिस के लिए एक माउंटेन पे. एंड देन देर वर, क्योंकि नॉर्थ इज मोस्टली टूरिस्टी प्लेस, बहुत सारे लोग आते जाते हैं. तो मैं अपना इक्विपमेंट लेके जा रही थी ऊपर एंड some of them they recognized me कि somehow I'm the same girl जिसने K2 पे साइकिलिंग की थी और फिर उसने ये सब कुछ कहा था according to the hate campaigners. So out of I don't know hate, out of anger, they followed me and they tried to harass me and they pulled my arm और वो अपनी तरफ से पता नहीं क्या करना चाह रहे थे. So I had to fight them, I had to report them and I had to get loud. I tried with the help of some people कि उनको trace down किया जाए, पकड़ा जाए. क्योंकि अगर मैं वहां पे जा रही हूँ या उनको सोशल मीडिया वो हाफ साइड ऑफ स्टोरी फॉलो कर लेते हैं, लाइक अंधाधुंध किसी भी कैंपेन का हिस्सा या ट्रोलिंग का हिस्सा आवाम बन जाती है और उनको भी अदर साइड ऑफ स्टोरी नहीं पता होती कि मेरी साइड ऑफ स्टोरी क्या है. और वो उसी उसमें आके दुश्मनी में कि चलो हम तो 8-10 लड़के हैं या अकेली लड़की है कुछ नहीं कर सकती, लेट्स जस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस सिचुएशन.
सो ये हरासमेंट केस पहले तो नॉर्मल रोड साइकिलिंग पे चले, रोड हरासमेंट इट्स रियली कॉमन विद एवरी अदर वुमन, वो तो होती होती है, लेकिन प्लान्ड हरासमेंट बिकॉज ऑफ सम सोशल मीडिया कैंपेन, ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है। और ये पहले इंसिडेंट है अभी उस, हालांकि मैंने कभी अपने पास वेपन या कोई ऐसी चीज नहीं रखी, तो अभी जब मुझे अपने पास प्रॉपरली कोई ना कोई वेपन रखना होता है, मुझे आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अकेले किसी जगह पे ना जाऊं, किसी रिमोट जगह पे मेरे साथ मेरा फेलो क्लाइंबर हो, फेलो टीम मेंबर हो, कोई ना कोई हो। तो मेरे दिल में भी अब वो बात आ गई है कि आई एम नॉट सेफ एनी मोर। और उस जो पीस ऑफ माइंड आपको स्पोर्ट्स करने के लिए चाहिए वो भी नहीं होता, मतलब मेरा पार्शल ध्यान उस तरफ होता है, अपनी सेफ्टी की तरफ होता है, और पार्शल होता है कि मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं। And that is very disturbing and very sorry मैं फील कर रही हूँ फॉर द थिंग के आपको ये चीज फेस करनी पड़ रही है, वो भी किसी ऐसी चीज के लिए जिसे एक बहुत हार्मफुल आप काम कर रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना नेचर को डैमेज कर रही हैं, आपने जाके कोई खुदाई नहीं की, वहां पे कोई मास्टर प्लेट क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी पहाड़ को तोड़ के कुछ करने की कोशिश नहीं की। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप एक छोटी सी साइकिलिंग कर रही हैं, आप जस्ट स्पोर्ट्स कर रही हैं और आप अपनी कंट्री को दिखा रही हैं टू अदर पीपल के लोग आए, कितना इससे हमारी कंट्री को फायदा होता है। इवन यू आर जस्ट आल्सो ट्राइंग के हेल्दी बेनिफिट्स के क्या हैं, आप कैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं जो लोग, बिकॉज इफ यू नो पीपल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी को नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव चीजों की तरफ ले जाते हैं, फाइट्स कर रहे होते हैं, एंड इफ दे डाइवर्ट देयर सेल्फ टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, तो उनके लिए कितना हेल्दी, कितना माइंडफुल और पीस और वो सब कुछ वो कर रहा होता है। और जैसे अभी आपने मेंशन किया कि यू जस्ट गो टू द नेचर एंड यू टॉक टू द नेचर, so when you are very feeling so alone, or so because your work is like you're alone all the time, I would say बहुत ज्यादा लाइफ में आपके ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपने अलोन फेस किए होंगे, चीजें अलोन फेस की होंगी। सो हु इज द पर्सन जिससे आप बात करती हैं, फिर सबसे पहले आप वो किसको बताती हैं कि मुझसे ऐसा मसला हो गया एंड समथिंग लाइक दैट? देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस आर कमिंग। आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माय ओन लेकिन अभी माय मॉम इज द वन हु इज वेरी क्लोज टू मी। अगर मैं उनसे कुछ शेयर ना भी करूं तो उन्हें पता चल जाता है कि शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, एंड शी देन आस्क कि क्या हुआ है, लाइक हाउ कैन वी हेल्प यू आउट इन दिस। एंड मुझे यही कहती हैं क्योंकि माय फादर डाइड लाइक लॉन्ग अगो, 10 12 15 साल हो गए हैं, कि जब उस टाइम हमने सब कुछ खुद संभाला, खुद स्ट्रगल की, खुद अपने आप को सस्टेन किया, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और हम उस चीज से बाहर निकल आए। नाउ वी आवर लाइफ इज सो ब्लेस्ड, तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो अभी तो तुम्हारे लिए चीजें हैंडल करना बहुत ईजी होना चाहिए। मुझे खुद भी ये फील होता है कि मेरे पास अच्छा नेटवर्क है, आई हैव वॉइस, people listen to me when I share something, और and I have a lot of strength in me and my work। तो अगर मैं ये चीजें फेस कर रही हूँ, एंड तो एक आम कॉमन लड़की के लिए कितना मुश्किल होता होगा कोई भी नई चीज स्टार्ट करना, अपने किसी भी पैशन को परस्यू करना, वो बेशक वो स्पोर्ट्स है या नहीं है। And why is it so much challenging for women to just follow their dreams with their own money, with their own efforts? हम ऑलरेडी काफी इम्पावर्ड है, लोग कहते हैं ना खवातीन को इम्पावर करें, तो मैं समझती हूँ हम ऑलरेडी काफी इम्पावर हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस हमें रोके ना। अगर आप हम इम्पावर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारा रास्ता भी ना रोके। लाइक आई रियली रियली बिलीव कि अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं बगैर किसी को डैमेज किए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, और आप साफ नीयत से अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसका अजर दे रहा है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने फेसबुक पेज पे जो मर्जी शेयर करूं, मैं अपने पैसे से जो मर्जी करूं, अपना कोई भी स्पोर्ट्स करूं, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, आपको मेरा काम पसंद नहीं है, आप अनफॉलो कर दें। मीडिया में सेलिब्रिटीज बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम शायद मुझे पसंद ना हो, या जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं उन्हें फॉलो ही नहीं करती। लेकिन ये तो नहीं कि आप हर पोस्ट पे जाकर उन्हें थ्रेट करें, उन्हें डिग्रेड करें, उन्हें हरास करें। एंड एक टाइम आता है कि आप फेड अप हो जाते हैं कि यार मैं किस नेशन के लिए या किन लोगों के लिए मैं चेंज लाना चाह रही हूँ, लाइक डू दे इवन डिजर्व इट। लेकिन फिर आप ये भी देखते हैं कि नहीं, देयर आर सम पीपल एंड सम कम्युनिटीज हु हैव बीन देयर टू सपोर्ट यू। सो काफी मिक्स चलता है ये सब कुछ। ओके, सो इसमें मुझे बताएं, अगर हम कम्युनिटी वाइज बात करें, आपकी अपनी कम्युनिटी, केबी की कम्युनिटी और जो अदर प्रोविंस की कम्युनिटी है, इसमें कितना डिफरेंस है? दे ऑल ट्रीटिंग यू द सेम इन द सेंस कि जो हर्डल्स वो आपके लिए सेम ही क्रिएट हो रहे हैं, या ज्यादा आपको पख्तून कम्युनिटी से हर्डल फेस करने पड़ते हैं, या उनके लोगों से आपके जो है हर्डल्स उनकी तरफ से आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? बिकॉज वहाँ अच्छा, पे गैरत पख्तून भी आ जाती है और कम्युनिटी से सारे मामलात भी आते आयरॉनिकली हैं। जितना मुझे हम्म, 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 हम्म।
पख्तून कम्युनिटी में अब मिक्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो जवान लड़के लड़कियां हैं, जो यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज में अब आ रहे हैं, जिनको समहाउ पढ़ने की परमिशन मिल गई है, कुछ लोग पेशावर इस्लामाबाद में भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे केपीके के लोग, मेरी अपनी दीर जो होम टाउन है वहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज अब ओपन हो गई हैं, तो उनका भी अपने पिछले जनरेशन से काफी गैप है मेंटली. They want to do sports, they want to do hiking, they want me to go there and train them and cycle with them, और मैं उनको भी इस जगह पे लेकर आऊँ. A lot of people are very much interested in my sports, और वो मेरे साथ कम्युनिकेशन ऑन और ऑफ करते रहते हैं. लेकिन वंस आई ट्राई टू डू इट ऑन ग्राउंड, तो हमें थ्रेट्स भी आते हैं. एक दो यूनिवर्सिटीज के साथ मैं काम करना चाह रही थी, तो मेरे पोस्टर लगने में सिर्फ उनको लेटर आने लगे कि अगर यहाँ पे फहाशी फैलाई गई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. तो चैलेंजेस हैं, नो डाउट चैलेंजेस हैं, लेकिन वहाँ के जो यूथ और नए लड़के लड़कियां हैं वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं. दे वांट इनोवेशन, दे वांट एजुकेशन, दे वांट स्पोर्ट्स, दे वांट अपॉर्चुनिटीज. ब्लॉगिंग की तरफ, जर्नलिज्म की तरफ अब काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो आना चाह रही हैं. ऐसे सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ किए हैं हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के. तो चेंज बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन सबसे पहला काम हमने क्या करना है, कम्युनिटी को ओपन करना है. तो वो मैं अपने कॉन्फ्रेंसेज और टॉक्स के जरिए, कम्युनिटी मीटिंग्स के जरिए मैं कोशिश करती हूँ. चतराल में हमने काफ़ी कम्युनिटी मीटिंग्स की, अपर दीज यूनिवर्सिटी, अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी में हमने की, यूनिवर्सिटी मालाकंड में की, और वहाँ के लोग बहुत, वी ट्राई टू टेक देम ऑन बोर्ड कि स्पोर्ट्स कभी भी फहाशी नहीं फैलाता. हमारे साथ बहुत सारी एथलीट्स ऐसी हैं जो हिजाब में स्पोर्ट्स करती हैं. तो आप जिस मर्जी कपड़ों में स्पोर्ट्स करें, लेकिन एटलीस्ट आप बेटर लीडरशिप क्वालिटीज आप में आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आप उसको करियर बना सकते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ अनटैप्ड स्पोर्ट्स करियर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान. अगर वो हम करें तो उसमें अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, हम उसको टैप अप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से. और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आप किसी भी कपड़े में जो है ना, इवन यू कैन गो इन हिजाब, यू कैन इवन, आजकल तो फ्रॉम कोरोना टाइम पीरियड बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर वेयरिंग देयर मास्क. सो इट्स नॉट इवन, इट्स नेवर इवन द डिबेट अबाउट ड्रेसिंग, इट्स यू नो जस्ट डिबेट अबाउट मे बी जेंडर को वो पॉइंट आउट करते हैं. ओके, सो बाकी कम्युनिटी, पख्तून कम्युनिटी में आई वुड से कि वो शायद आपको सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इफ आई एम कंक्लूडिंग इट पॉजिटिव राइट वे, कि आपको पख्तून कम्युनिटी ज्यादा सपोर्ट मिली है एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी. अभी अभी इट कम्स डाउन टू एजुकेशन. जितने भी पढ़े लिखी कम्युनिटी, पढ़े लिखी पख्तून, प्रोग्रेसिव पख्तून है, दे आर सपोर्टिंग मी, दे इनकरेज मी टू डू स्पोर्ट्स. और समहाउ कभी कभी ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं कि इसको तो गोली से उड़ा देना चाहिए, ये तो हमें बदनाम कर रही है, ये वो. सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू एजुकेशन आई गेस. जिनको समझ में आती है दे सपोर्ट है, जिनको नहीं आती तो उनको अभी भी गैरत का मसला बनाते हैं. एंड इट्स इन एवरी प्रोविंस. जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको एक्सपोजर है, दे अंडरस्टैंड इट. जिनको नहीं है वो इस चीज को थ्रेट समझते हैं. ओके, आपसे मैं एक और, नाउ आई विल आस्क यू अबाउट द जेंडर्स. अगर मेल और फीमेल दोनों की बात की जाए तो किस तरफ से आपको ज्यादा हर्डल आता है? बिकॉज दैट वुड बी अ चैलेंज, बिकॉज यू आर फीमेल, एज अ फीमेल काम करना, सो इट शुड बी अ प्राउड फॉर अ फीमेल कि आप काम करिए इस तरह से. आई नो दे डोंट टेक इट दैट वे, बट आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट दैट. मैं आई ऑलवेज फॉलो फैक्ट्स एंड फिगर्स. मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस और फैक्ट्स पे बात करती हूँ. अंधाधुंध अजम्पशंस पे मैं नहीं जाती. तो अब मैंने पिछले 5-6 सालों में अब मेरे हेट कमेंट्स देखे हैं, जितने भी कमेंट्स देखे मेरे सोशल मीडिया पे, शेयर ही शेयर देखे, 90% जितने भी ट्रोलर्स हैं, हरासर्स हैं, दे आर मैन. 90%. 5-6-10% होंगी खवातीन, वो हिजाब वाली जो अक्सर मुझे इस्लाम पे लेक्चर दे देती हैं. बट मोस्ट ऑफ देम आर मैन. दो रीजंस ये हैं, एक तो गैरत का मसला है कि मैं लड़कियों को खराब कर रही हूँ, या मैं वेस्ट को प्रमोट कर रही हूँ, या मैं किसी एनजीओ का एजेंडा प्रमोट कर रही हूँ, ये इल्जाम उस पर लगाए जाते हैं. दूसरी चीज ये है कि अक्सर लोग, वो मर्द जो खुद स्पोर्ट्स में है, कहीं कहीं सालों से हैं, मुझसे बहुत सीनियर है, और उनको इतनी सक्सेस या फेम नहीं मिला जितना मुझे 5-6 साल में मिल गया है, तो वो उस चीज को भी पर्सनल जेलेसी का मसला बना लेते हैं. अक्सर मेरे कैरेक्टर पे बाप कोई बड़ा ऑफिसर होगा जिसके पैसों पे सब कुछ करती है, हालांकि nobody knows कि my father died long ago and I'm the only one who's supporting the family, who's sustaining the sports. um, so assumptions और hate ज्यादातर मेल मेजोरिटी से आया है. 80 to 90% मेल्स होते हैं उसमें. सो ये कंक्लूजन के आप सो दैट इज हर्टिंग एज वेल, बट यू नो हमारी वो ओवरऑल वो उसको डिबेट करो तो फिर बहुत लंबी डिबेट बन जाती है. बट द थिंग इज दैट कि हेट, देखिए हेट तो मैं आपको कहूँ, एक लड़की ने बाया पहना होता है और वो जा रही, तो हेट तो उसको भी मिल रहा होता है. सो अब उसके बारे में आपको नफरत करने की क्या जरूरत है?
आप कहते हैं ना कि बाएं पैर के निकले से अपने आप को निकालने की, उसमें आपको क्या चीज नजर आ गई? इवन आई वुड, एक बहुत फनी मैं आपसे चीज शेयर करूं, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, आई विल टेल यू सम टाइम। अब वहां पे जो है ना, वो तो उनकी शक्ल नजर नहीं आती है, दैट इज अ वेरी फनी थिंग आई एम शेयरिंग विद यू, बट दे आर डूइंग, हजरात क्या करते हैं वहां पे, सुबह के टाइम पे निकल जाते हैं, खेतों में बैठ जाते हैं, एंड हर घर से हम्म। उनके पाँव से पहचानते हैं और कहते हैं फलाने घर की औरतें जा रही हैं, उन्होंने पाँव के पता नहीं क्या मेजरमेंट रखी हुई है, बिकॉज उन्होंने तो बुरका पहना हुआ तो वो नजर नहीं आती, और वो सारी उनको पता, कहते हैं फलाने घर की है, ये फलाने घर की औरतें, ये फलाने घर की औरतें, फलाने घर की औरतें, एंड इट्स सो फनी, आई डोंट नो हाउ दे रिकॉग्नाइज दीज पीपल, कि जूतों से रिकॉग्नाइज करते हैं, पाँव से वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बट दे हैव देयर एक्स-रे विजन एंड स्टफ लाइक दैट, एंड इट्स फनी एज वेल। सो इनके पास इन चीजों के लिए बहुत टाइम होता है और वो यही करते हैं, और शायद उनको ये लगता है कि उनको, उनकी जो उनके स्कूल हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, उनके लिए भी इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। वो तो हमें रोका जाता है ना इस तरह से, यार आपको रोका जाता है कि आप मत करिए चीज, आप क्यों कर रही हैं, आपको, और इवन से आपको क्या जरूरत थी करने की, आराम से घर में बैठे रहो, क्या जरूरत है करने की, हर तरह के कमेंट आपको मिलते होंगे। और नाउ आई वुड लाइक टू थोड़ा डिस्कशन को थोड़ा सा लाइट करते हैं, सबसे फनी चीजें जो आपने फेस की हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम, दीज फनी थिंग्स। अच्छा, अक्सर मैं जब साड़ी होती हूँ तो रोड पे या माउंटेन्स पे, तो पहले तो वो समझते हैं कि ये कोई अंग्रेज है, तो अक्सर वे वो भी आते हैं, नारे भी लगते हैं, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, वेलकम टू पाकिस्तान, कोई कहता है आप उर्दू बहुत अच्छे बोलती हैं। तो फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन, मैं अक्सर लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती, मैं यही मेंटेन रखती इमेज के, ऐसे ऐसे फॉर्डर में निकल जाती हूँ। और एक दो और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत, मतलब अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं, जितना आप रिमोट एरियाज में जाते हैं, गांव में जाते हैं। मुझे अक्सर नॉर्थ में ऐसे होते हैं, उनकी फ्रूट्स बहुत लगे होते हैं, वो कॉमन तोड़ तोड़ के मुझे दे देती है, अपने साथ लेके जाओ, ये रखो अपने साथ, आगे काम आएगा। फोन नंबर चाहिए, पैसे चाहिए तो बताओ, हालांकि मुझे जानते भी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटीज भी मिली हैं, सिंपल, सिंपल एंड प्योर। So I really respect and regard them, and then like I feel like डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, and मेरी स्पोर्ट्स की वजह से ही मैंने काफी कम्युनिटीज के बारे में जाना सीखा, एंड देन आई स्टार्टेड, एंड इसीलिए मेरे ख्याल में उसमें एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा आ गई है। आई डोंट केयर नाउ कि कौन किस रिलीजन का है, किस बैकग्राउंड का है, किस लैंग्वेज का है, एज लॉन्ग एज ही इज़ अ गुड ह्यूमन, वो आपको टॉर्चर नहीं कर रहा, आपको थ्रेट नहीं कर रहा। यही चीज़ हमें एज अ नेशन भी सीखनी और एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड आई वुड से कि जो इंटरेस्टिंग जो जर्नी पार्ट आपका होता है, समटाइम कुछ चीजें जब पॉजिटिव होती है तो आपकी थकन उतर जाती है उससे, जैसे अभी आप कह रही हैं कि वो बहुत, सो डू दे ऑफर यू कि आप उनके घर में उनके साथ खाना खाएंगे, आपको सब कैसा लगता है? बिकॉज आई एम श्योर वो इतने हॉस्पिटेबल लोग होते हैं, जो पहाड़ों के लोग होते हैं, और इस केपी के एरिया के तो मैं इसे कहूंगी कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं, तो हाउ यू फील फिर जब आपको कहता है आप हमारे घर आए, खाना खाए, हमारे साथ स्टे करें, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ मुझे मुझे रोका है कई पॉजिटिविटी। दफा, हम्म। मुझे कई स्ट्रेंजर्स रास्ते में मिले जिन्होंने मुझे रोड पे रोका, मुझे लेके गए, चाय वगैरह पिलाई, या जो भी उनका ट्रेडिशनल खाना था वो खिलाया। या ईद पे आई वाज राइडिंग अक्रॉस हुंजा, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसिडेंट है, मैं अक्सर शेयर करती हूँ कि एक देयर वाज अ सीनियर पर्सन, वो रोड पे जा रहे थे अपने कई रिलेटिव्स वगैरह से, जब उन्होंने देखा रोड पे इस तरह, मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, हम दो लड़कियां थी, दे स्टॉप्ड अस एंड दे टुक अस होम। ईद पे उन्होंने जो भी बनाया था, उनका ग्रैंड फैमिली फीस्ट था, उसमें उन्होंने हमें बिठा के अपनी फैमिली के साथ खाना खाया, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया, पिक्चर्स बनाई, कॉन्टेक्ट शेयर किए। और इट्स बीन ईयर्स नाउ, मैं जब भी आती जाती हूँ वही सेम लोग मिलते हैं, दे ऑफर मी देयर काइंड एंड जनरस हॉस्पिटैलिटी, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम। ओके सर, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी कि जब आपको अचीवमेंट्स हो जाती हैं, व्हेन यू गेट योर, तो क्या आपकी जो जर्नी में तकलीफ होती है वो कम होती है? वो दैट स्टे विद यू, बिकॉज वो जब आप कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते हैं, वो आपकी लाइफ एक पार्ट आपसे ले जाती है, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट, बिकॉज जब हम प्रोफेशनल, तो मुझे इस चीजों का आइडिया है, उसको बहुत टाइम तक उसका खलास में रहता है, अनटिल अनलेस यू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। तो जब आपको कोई अचीवमेंट होती है, तो क्या वो चीज की इंटेंसिटी कम होती है? यू थिंक अबाउट दैट, या जस्ट यू जस्ट लेट इट गो? It's a difficult thing, but I would like to know your opinion about that.
when I achieve something, प्रॉब्लम्स तो रहती हैं क्योंकि ऐसी फील्ड है, प्रॉब्लम्स रहेंगी, हर बंदे के साथ रहती हैं, लेकिन विद टाइम आपका स्ट्रेंथ लेवल बढ़ता है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है कि ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ माई जर्नी, रहेंगी, मुझे चलना है, आई शुड कंटिन्यू। और अचीवमेंट्स के बाद स्पेशली मैं आई फील वेरी मच काम्ड एंड रिलीव, क्योंकि माई अचीवमेंट्स आर नॉट ओनली they give me sense of achievement, but they also answer the naysayers, the one who tried to damage my career. तो जवाब भी होता है उन लोगों के लिए कि yes, I can do it and I will be continuing my journey. I can't be stopped by you guys. तो आई फेल्ट वेरी, मैं बहुत रिलीफ फील होता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ, मैं मुल्क से बाहर भी जा सकती हूँ, मैं इस बड़े चैलेंज को भी, अगर मैं इस चैलेंज तक पहुंची तो मैं इससे बेहतर भी कर सकती हूँ। मेरी करेज, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आती है, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट आती है, एंड एवरी एक्सपीरियंस टीच मी अ प्रेशियस लेसन। बेशक वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, बुरा एक्सपीरियंस हो, आई ट्राई टू लर्न आउट ऑफ इट। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन पूछूंगी समर, क्या ड्यूरिंग दैट जर्नी आपने ये सोचा कि अगर मेरे साथ अब्बू होते, आई डोंट वांट यू टू गेट मोर इमोशनल, आई नो बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा ही ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन लड़की का अपने फादर के साथ होता है, तो कभी आपको फील होता है कि मेरा अब्बू मेरे साथ हो तो आज मुझे ये चीजें ना फेस करनी पड़ती? टेक्निकल इश्यूज, आई होप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभता विद स्टेइंग विद अस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चल रही हैं बिकॉज हमें एक बंदे की अचीवमेंट हमारे सामने हमें नजर आती है एंड वी आर वाचिंग कि वो कहीं मीडिया में उसको कवरेज दी जा रही है, कोई कुछ क्या करे कभी क्या करे, लेकिन ये हमें नहीं पता कि ड्यूरिंग द होल जो जो जर्नी है उसमें उस बंदे ने कितनी प्रॉब्लम फेस की है। एंड आई होप शी जॉइन अस अगेन, तो हम फॉरन ऑन बोर्ड ले लेते हैं। आई एम श्योर आप सब लोग जो सुन रहे हैं उनको आइडिया हो रहा है कि एक इंसान एक हमें इंसान नजर आते हैं कि वो इतना कुछ अचीव किया है बिकॉज शी हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट माशाल्लाह, एंड शी इज डूइंग वेरी गुड, बहुत ब्रेवली बहुत सारी चीज़ों को कर रही है। जैसे जिन लोगों ने अभी स्टार्ट में मुझे ज्वाइन नहीं किया, तो बताऊँ कि आई हैव सीन वो केटू पे उन्होंने जब बाइकिंग के पिक्चर्स, उनके फेस की सारी स्किन खराब हो गई, टर्न रेड, फिर वो जाते हुए उनकी पाँव पे जख्म थे। सो और इतनी दूसरी तरह की उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं जस्ट टू स्टे फिट, और ताकि वो आगे जा सके या अपनी जो एथलेटिक नीड्स है उसको पूरा कर सके। एंड यस, शी जॉइन्स अगेन, शी इज गोइंग टू जॉइन अस अगेन। थैंक यू सो मच समर अगेन। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको इमोशनल थोड़ा सा कर दिया, बट आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू नो बिकॉज ऐसी चीजें लाइफ में बहुत आती हैं। सो ऐसा होता है, या अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते देन इट्स ओके, आई विल नॉट आस्क यू टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट वी वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन देन आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट दैट। नहीं, definitely there are moments, not only challenging moments, but the moments that I want to celebrate, and I always wanted to celebrate with my father, and I always wanted to share these moments with my father, and he really believed in my courage. उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, but I remember some of his lessons. एक बात वो हमेशा कहते थे कि whatever you do, always complete it, always finish it, कोई भी काम बीच में मत छोड़ो। तो जो भी करना है उसको पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरी करेज के साथ उसको पूरा मुकम्मल करो, कोई काम बीच में नहीं छोड़ो, देन यू विल बी एबल टू गेट योर शेयर ऑफ सक्सेस। तो जब भी, और ये बात मुझे हमेशा याद भी होती है कि जब भी एक्सपेडिशन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है या सोशल चैलेंजेस आते हैं, इमोशनल बैरियर्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो इन दैट मोमेंट आई ऑलवेज try to recall his words, he complete it with grace, complete it with dignity,
and give it whatever you have. तो फिर वो चीज़ मुझे Mm-hmm. क्विट नहीं होने देती, and I'm really feel blessed for these lessons, for these moments. And कभी कभी दिल भी करता है कि I wish he was here to celebrate my achievements and to take pride in it. There are a lot of things Mm-hmm. which feels incomplete. But my parents, both of my parents, my mother and father, they have given me enough courage. और अक्सर मुझे लोग कहते हैं तुम्हारी बहुत डिफिकल्ट पर्सनैलिटी है, यू आर अ वेरी हार्ड पर्सन. बट आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि जो काम मेरा है, जिस सोसाइटी में हमने सर्वाइव करना है, यू कैनॉट सर्वाइव इट being weak or fragile. You need to be tough, and I got this toughness from my parents. Mm-hmm. So people think that कि जो courage है ये कहीं और से आती है, and they don't even know that कि courage जो है आपकी family से आती है. That is something internal. बहुत मुश्किल होता है आपके लिए अगर आप बहुत फ्रेजाइल हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ लड़की को वो किया जाता है, बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, और रीजन उसकी एक पैम्पर करने की होती है कि भाई की दुनिया, एक्सटर्नल दुनिया बहुत हार्ड है. एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी, दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एज वेल. आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. सो जो करेज आपके साथ अपनी पेरेंट्स से आती है, फैमिली से आती है, वो वो एक तरफ, और दुनिया की प्रॉब्लम्स, उसकी क्रिएटेड प्रॉब्लम एक तरफ. लेकिन आप इंटरनली, जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होगे, आप उनको फेस नहीं कर सकते. आपने शायद कितने लोगों को अपने कैरियर में फेस करते थे, कितने लोगों ने स्टार्ट किया, कितने लोगों ने छोड़ दिया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा. लेकिन अगर आपकी अभी तक इस तरह से चलने की अगर रीजन वो है, दैट इज योर पेरेंट्स, दैट इज योर फादर, बिकॉज उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टुवर्ड यू. एंड के बिकॉज अगर आप, इफ यू सी योर सेल्फ, आई डिडंट हर्ड अबाउट दिस थिंग, जैसे आपने फर्स्ट टाइम मेरे से बात हो रही है, एंड यू सेड के फादर ने आपको बताया कि जो चीज स्टार्ट किया आपने उसको खत्म करिए. इट मींस व्हाट, कि आप वही कर रहे हैं, यू आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ योर फादर. एंड मे बी जहाँ पे जिस टाइम वहां पे ही इज फीलिंग सो emotion hurdle as well, and you just continue your journey, and a lot of respect is coming from my side. What would you like to give the you could say message to the girls who want to come in this sports? बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपके लिए समर, आई एम श्योर यू आर वेरी बिजी पर्सन, बट Hello? Let the society define you and your worth and your ability. The way you want, ताकि एंड में जाके आपको रिग्रेट्स ना हो कि आप बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन आप, तो just do it. okay. So I would like to ask समर वन थिंग के व्हाट इज योर ओपिनियन कि जो आप स्पोर्ट्स होती हैं, आपको आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव करने में कितना रोल प्ले करती है अबाउट स्पोर्ट्स, तो कितना है आपकी मेंटल हेल्थ? um, मेरे जितने भी एज फेलोज हैं, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बैंक में जॉब करते
Let's hope to. जी अनीना, अगेन मैंने आपको ले लिया एंड मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको ले लिया ओके बिकॉज इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ज़रूरी है जानना, उनके बारे में बात करना, बिकॉज यू दे आर वेरी इम्पल्सिव पीपल बाय पर्सनैलिटी। उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को निकालना, तो दे हैव अ लॉट ऑफ mental energy as well. So it is very important to convert that mental energy and physical energy into some positive thing. तो maybe आप जब छोटे थे तो इस चीज का ऑलरेडी हो गया होगा कि you could do more, you want to do more, क्योंकि वो इस टाइम पे होता है जब आप में ये सब स्टार्ट करते हैं, अपनी कैरियर वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, उस दिन चीज़ों के बारे में सोच होते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट पीरियड, दैट्स व्हाई एंड सेकेंडली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मुझे आइडिया है कि जो लोग घर से नहीं निकलते तो उनको ये कहते हैं प्लीज गो आउटसाइड, बाहर की जैसे उनकी एनर्जी से मैच करती है, पॉजिटिव एनर्जी से मैच करेगी, so they feel good as well. So like you told me कि whenever you are in stress, when you are feeling some anxiety, you're alone, so you go and talk to the nature. So that is a very good thing that you're practicing this thing. And अभी तक कोई कैसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो कि आप बिल्कुल नहीं भुला सकी, like that it is not getting out of from your mind? I'm sure you आपने 2-3 कंट्रोवर्सीज मेरे साथ शेयर किए हैं और that was yes. मेरे एक्चुअली कुछ इतने ज़्यादा इमोशनल वो नहीं है, मेरे ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जब मैं आउटडोर में होती हूँ, माउंटेन्स में होती हूँ. तो आई रिसेंटली हैड अ वेरी वेरी डेंजरस एक्सीडेंट. मैं और एक फेलो एथलीट हम लोग जा रहे थे ऊपर, एंड वी टुक द असिस्टेंस ऑफ अ स्नो स्पीड कार, आप उसे बोलते हैं. so, जैसे वाटर जेट होता है, वो पानी पे तेजी से चलता है, इट्स लाइक स्नो जेट. आप उस पर बैठते हैं, वो एकदम आपको ऊपर ले जाता है. So we had a really ugly and nasty accident on it, and it flew over our heads. और अगर वो नहीं जाता और हमारे ऊपर आ जाता तो हम we wouldn't make it. और वो इस चीज को इंसिडेंट करने वाले बहुत सारे लोग थे. Like there was a huge crowd who were watching us, and we just had a really really close call. तो अक्सर वो जब मैं चीज सोचती तो मुझे एकदम वो पूरी बॉडी में ऐसे वेव से भी गुजर जाती है, out of fear or something, कि we God has just saved us like this. इतना हमें बचाया है थोड़ी से उस पे. नहीं तो इतनी हैवी मशीन होती है, वो इतनी हैवी मशीन अगर वो आपके ऊपर आ जाए तो आपका कुछ भी नहीं बचता है. just and a lot of such incidents and accidents happened during my sports journey के I had to face landslidings, I had to jump over इतनी सारी डीप खाइयाँ होती है, आपको पता नहीं चलता. और कहीं कहीं जब आपको पता चलता है कि हम किसी खाई के ऊपर खड़े हैं और आप जरा सा हिलेंगे तो वो टूट जाएगी पूरी लेयर. तो ऐसे मोमेंट्स भी हो चुके हैं. But Allah has saved me on a lot of places, and I hope He keeps saving me in future. Okay, Samar, I would ask question about your tattoo जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है. So you are a warrior and you have this warrior tattoo. So I love this tattoo by the way, but क्या मैसेज है इस tattoo की तरफ से? Because that is part of your personality. So what is the message from this tattoo? Yeah, it's actually a war helmet and arrows behind it. Okay. And I always wanted to have something like this, which can be a good reminder of who I am and what I'm capable of in hard times. So कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको याद दिलाती रहे कि आपने you are not an ordinary person, you are better than this and you can do better. Of course, you're not ordinary person. You have a lot of achievement, mashallah. And I wish कि आप बहुत ज़्यादा achievements करते रहें. And don't look back. इतना सा भी नहीं, मतलब you don't need to think about people, because people don't define you, to be very honest. And you even don't need to compare yourself with other people. Yeah. But you are today, you have to compare yourself from 5 years, 6 years, because they define you. और देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन तभी पूछा था when you are feeling anxiety, when you are alone, what you are doing.
यही तभी मैंने आपसे पूछा था, you said you go in the nature, see you're alone at that time, so you have to face your all problems, your trouble alone. That's why topic जब मैंने रखा था that let's talk mental health, because of mental health there are a lot of people जिनके इतने mental barriers होते हैं कि उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, and maybe you face that barrier as well. आपने just mental barrier, आपने physical barrier भी बहुत face किए, and you're going along and you're giving very positive you could say motivation to other girls जो आगे जाना चाहती हैं, and it's ये सब करना पड़ता है because कितनी खराब हो चुकी थी, that was totally turned red, and I don't know कितने टाइम आपको लगा उससे निकलने में, या you could say कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने में, दोबारा अपने आप को you know लेवल पे लेकर आने में कितना आपको टाइम लगता है दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने में? इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। मेरे अक्सर सनबर्न हो जाता है, बहुत सीवियर सनबर्न होता है, इंजरीज आती हैं, एंड मैं अक्सर अपनी इंजरीज की रिकवरी के बीच में अगले एक्सपीडिशन पे चली जाती हूँ। दैट्स हाउ माई वर्क डिमांड्स। बहुत डिमांडिंग काम होता है फिजिकली मेंटली। घर आके मैं पैक करती हूँ, फिर अनपैक करती हूँ, फिर दूसरे एक्सपीडिशन पे निकल जाती हूँ। तो समटाइम्स फेस्टिवल्स मिस हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स मिस हो जाते हैं, लेकिन सीरियस यू आर टू योर वर्क, एंड इसी वजह से आई थिंक मेरी जर्नी चल रही है और आगे भी चलेगी, बिकॉज इट डिमांड्स सिंसेरिटी, इट डिमांड्स एफर्ट्स, इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी। आप रुक नहीं सकते हैं। और जिस काम को जिन गोल्स को आप इतना टाइम देते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, देन यू अचीव इट। अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर देता है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा देता है। बिल्कुल, बिकॉज देयर आर सो मेनी एब्सोल्यूट रियलिटी इन द लाइफ जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, और हार्ड वर्क ऐसी चीज है जिसकी कोई आपसे हार्ड वर्क ले नहीं सकता। nobody could take your talent, nobody could take your abilities, nobody could take that part of yourself जो आपको आगे लेके जा रहा है। people will always try that। इवन आपके बहुत करीब के लोग भी कर रहे होते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत अपने करीब के लोगों से भी सब फेस किया होगा, which you never talked about। अपने ऐसी बात कर जाएंगे जो आपको हर्ट करती है और आपके लिए इवन प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, रैली कर लेंगे आपके लिए, आपके दोस्त होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम समर, एंड आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू टॉक टू यू अगेन। मैं बहुत तेज बोलती हूँ, थैंक्स गॉड आपने मुझे ये नहीं बोला। थैंक्स गॉड आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना पड़ा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सबर, इंशाल्लाह आपसे जरूर दोबारा मैं आपको लूंगी ऑन बोर्ड, एंड आई वुड लाइक टू गिव मी टॉपिक फ्रॉम योर साइड। अल्लाह हाफिज।